जरा छिला खड़ा ना जरा मना छिला खड़ा वो बाहर कहीं खड़ा था हैं और ये हो गया क्या दुनिया वाली है तो ये बांधने में मार खा गया अबू सत्ता पे आई वो अगले तो आ जरा वड़दा है दातरियां लाके लोटे पा तो ब्याह होते साड़ दे ब्याह होते पर पिछले टाइम ब्याह बड़ा फसल लाल मेरी आप मकई की वीडियो बना रहा था मैं मकई छिलदा मैं डाकू बने डाकू मकई दा सोने की फसल मारने की है दिन के टैग कराऊंगी दिक्कत बड़ी हूँ मैं अभी सारी पेट निकल आई एक दिन कितने हाँ वो बड़ी गंदी मकई है बाबे ने गल्ला ला रही है गल्ला लाए ना आपको तेरे से कोई दो कनाला भरा लवे अब्बू है पिछले बार दो कनाल तो दो को बोटियां और जार दे है ये निकली ले केनिया आधे शीशे की वैसे केनिया अखा गल्ला दे आज गल्ला ने आज गल्ला इथु दिसना मैनू आज जड़ी दे गल्ला ने अखा दे उत्ते मतलब अखा बैठे अखा ते गल्ला ते उत्ते है वाले बंदे ते अखा तेरिया ए बराबर हो जाए जो फाटो दी मेरियां ने या बूदियां ने पाए आदियां वेख पहले मेरियां तो नजर लाना ते केनिया मास ने जरा मास ना तेरा ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਵਟ ਤੇ
मोटे बंदे ने तेन हुन वेला सानू पित घट है तेरे मैनू पित ज्यादा है क्यों ज्यादा है क्योंकि अंब कदे खाते तेरे जिस्म दे विच चर्बी ज्यादा ते जेड़े बंदे नू चर्बी ज्यादा होवेगी ना ओनू पसीना ओनू हवस साह जिवें बंदे दा गुम हुंदा है सांस चढ़दी है फिर ओनू इस तो हट के ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਠੰਡੀ ਜੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਈ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਮਕਈ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਯਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੋਟੇ ਸਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਪੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖਲੋ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ अब भाभी यार मौलवी पतले होते हैं पतले पतंग जो मोटे भी होंगे ना मतलब कि वो फ्लो के खुतबा देंगे फ्लो के जुमा पढ़ते जिन्हें बंदा एक उस्ताद लेक्चर दे मेरे सामने देखे यूपी दी कुर्सी ते बैठ पढ़ाना ऐसे हो गए जिले पढ़ा लेंदा कर देंगे आगे हम पतला करने वास्ते तेन मेहनत करनी पैनी महीना दे फिर भावे ना भी कदे मोटी नहीं फिर जिसम दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਚਰਬੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਬੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਉਹ ਤਿਲਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਲਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਕੋਣੀ ਵੈਸੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕਣਾ ਮੈਲ ਲੱਥੇ ਐਵੇਂ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ और अल्लाह ताला ने जन्नत क्या है जितना भी मैं इंसान में दंद दिते हैं और आप दंदा ਨਾਲ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਖਰੋੜ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਬੂਤ मतलब सवाल नहीं अपना काम में ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਗਰ ਫਤਿਹਾ ਅਗਰ ਕਹਿਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਲੈਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ
तो नबी वसल्लम ने मना किया कि किसी मर्द को पढ़ नहीं सकती वो औरत अभी पढ़ा सकती राय एक ड्रामा वेख्या राय एक ड्रामा वेख्या ना आप तो गाजी ड्रामा वेख्या ना और कितने ड्रामे कोई औरत किसी के घर से पढ़ाई देखी किसी ड्रामे ड्रामा तो ड्रामा ही मैं क्यों रोक अगला मैं ना मेरी चीज इज्जत है मेरी चीज जवान पहचान का रहा है साढ़े कभी आ गया कि दोनों चार दिया ना बजारत में सोच ना क्योंकि सरदार हो जाता है कि मेरी चीज बड़ी जवान है बाहर आके पहले कभी नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते पढ़ना उन्हें उन्हें पढ़ना है पढ़ाई की लोड़ किन्नी है उन्हें तो पढ़ा है पहले कभी कदावे उनकी अच्छी खिदमत करो ना वो करना तो बहुत बात ये नहीं ठीक है बस उन्हें कभी ऐसी लगे ना मान या के बच्चा गल सुने पहले उस दिन अब्बू ने आप आख्या मरियम का शबनी आई है उन्हें आख्या मेरी मिन्नत मान लै मेरी दी नाल थोड़ा बमार शमार रहिंदी है मिन्नत मान लै साडे की इन्हें आख्या बाजी मैं मेरा टाइम नहीं होता अब्बू तो आ गया अब्बू किते काम तो आया है अब्बू ने आ गया अब्बू आदा शबना खैर ना लाई बच्चों ने मामा तेरे नाल काम नहीं किया अब्बू ने किया ना कुड़ी नु ना मेरी कुड़ी है तुम बुला दे पढ़ती रही उन्हें बोल गया मामा तेरे को काम है बोले मामा आ दी अब्बू ते अब्बू ने आख्या पहले अब्बू ने आख्या रहन दे फिर उन्हें मामा मिन्नत वाली गल की तो उन्हें अब्बू ने फिर आख्या चल गांधी रहा 2 दिन बाद ही रब्बा ने भी उन्हें आख्या और 2 3 4 बार अपने घर भी आई बेचारी वो शायद पता नहीं हमें पता होना चाहिए गल सुने एक दिन गुस्सा लगे या ना लगे आने ना दीन नु जिन्ना फैलाओ दे उन्ना ही ओ कहता कि कल क़यामत दे रोज जिन्ने लड़कियां तू भरा जावेंदा या किन्ने मुंडियां तू भरावेंदा कुरान पाक ओ पढ़न दे तेनु भी सवाब उन्हां दे प्यो नु भी मौलवी जानदा है उनदी बुढ़ी तो लुटरवाइयां करदी गिले शिकवे थोड़े करदी पहले ए दस ए मौलवियां दी कोल किन्नियां कुड़ियां फिर बात तो यही देखी आए मौलवी दी बुढ़ी तां नहीं जाने उन्हें पता मेरी ता कहदा भाई उन्हें तो जाना है तो छिला ओ छिली लोकां दियां दियां करा किसे गरी कम लगियां करा कोई काम ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਣੀ ਲੱਗਣਾ ਜੋ बैक हाँ ये बैक कैमरा चल रहा है ये देखें आप माशाल्लाह क्या खूबसूरत है यार बहुत ही अच्छे हैं और ये सामने जो ना वो मुर्गी फार्म है वो आ रहा है आपको दिखाने तो ये लेके आ रहा था मैं ये देखें ये प्याज उन्होंने बीच में लगाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है सामने आप देख सकते हैं कि मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ ये जो खेत है ना ये सारा सरसों का है और
बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम जाएंगे इंशाल्लाह इधर भी, लेकिन कुछ इधर से थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग आपके लिए लेके आते हैं, तो आप हमारे जो व्लॉग ना इनको लाइक किया करें। बहुत मेहनत से बनाते हैं और आपको वक्त निकाल के आपके लिए ये लेके आते हैं नेचुरल के ब्यूटी। नेचुरल में कुछ अजीब अजीब चीज़ें भी हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये व्लॉग थोड़ी होगा। जी हाँ, आप इसको ये देखिए, ये कैसा पौधा है माशाल्लाह। किस चीज़ का जी मुझे तो नहीं पता, आप बताएं कमेंट में। जी फ़िलहाल ये सामने जो है ना वो आलू की फसल है। जी हाँ, आप देख सकते हैं आलू की फसल। तो मैं जो हूँ आपके इस अब आप देख सकते हैं कि आपने जो भी देखा है आप अभी कमेंट में बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सैर करा दी, साग वगैरह की भी। अभी से सर्दियाँ चल रही हैं ना, इसलिए। तो अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रजब अली और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब अली यूट्यूब चैनल। आज मैं बाहर आया था अपने गांव में साग लेने, तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये शेयर कर दूं कि साग किस तरह से तोड़ा जाता है और कैसा होता है साग। असल में ये साग जो होता है ये सरसों होती है, सरसों गोभी सरसों होगी, और इस तरह से तोरिया की जो होती है वो भी इन्हीं की एक किस्म है। आपने साग किस तरह तोड़ना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सर्दियों में ज़्यादा लोग साग जो है वो खाया जाता है, और साग जो है वो बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, देसी ग़िज़ा है। तो साग खाने के लिए सबसे पहले तो हमें घर से निकलना होगा और दूर दराज कहीं ऐसे खेत में जाना होता है जहाँ पे इस तरह के जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इस तरह की फसल में, इस तरह के चारे में। ये है सरसों। यहाँ से आपने इसको काटना है। ये हो जाती है जी पंजाबी चैनल के अंदर गंदल, ये आपको दिखाई दे रही है। अब इस तरह से आपने ये ऊपर से काटनी है, इधर से। आपको समझ शायद लग गई होगी। जी हाँ, जी हाँ, तो हम थे साग कैसे तोड़ा जाता है, और अब आपको बताएं कि ये जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको बैक कैमरे की जानिब से दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये सभी इलाका जो है इस वक्त माशाल्लाह गांव का माहौल भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सब्ज़ाजार है। और आप सैर वगैरह भी यहाँ पे करने आ जा सकते हैं। सामने कुछ खेत हैं जो फूलों से बिल्कुल भरे पड़े हैं, और वो भी येलो कलर के जो फूल हैं सरसों के, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, जो इधर आते हैं ना, हाँ इधर आए, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। अब इन्होंने इन पट्ठों में जो ना ये पट्ठे लाए हुए ने, इहदे विच ना गंढे भी लाए हुए ने। वाह भाई, गंढे लाए हुए ने। तो वखाने जी व्यूवर्स नो। जी हाँ, तो बैक कैमरे की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये बैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजब अली। आप देख रहे हैं इस वक्त रजब अली यूट्यूब चैनल। मैंने ये अपना न्यू चैनल बनाया है। सब भाइयों दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगा और बहुत सारी टिप्स वगैरह होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप देख रहे हैं इस वक्त दरियाए ब्यास। जी हाँ, ये दरियाए ब्यास है और ये तकरीबन सदियों से आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से। ये सामने आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। तकरीबन ये 4 एकड़ तक जो है वो चौड़ाई इसकी थी। लंबाई का तो पता ही नहीं है। उकाड़ा शहर तक जो है ना वो जा रही है। इससे पहले कबल जो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये एक छोटी सी नदी है जो दरियाए ब्यास से गुजर रही है। ये पहले दरियाए ब्यास था और अब ये दरियाए ब्यास की पुल जो है वो लोग इसको बताते हैं और इसका नाम रखा गया है। ये आप देख रहे हैं सामने जो इसका तकरीबन 97% जो हिस्सा है वो खुश्क ही रहता है। इधर थोड़ा सा पानी खड़ा है, वो देख के आगे खुश्क है। इसी तरह ये पंजाबी च कहते हैं गड़ूमियाँ, जिथे थोड़ी जी नीवी है पानी रुक जाता है, तो जिथे थोड़ी उच्ची आ जाती पानी को नहीं होता। देख रहे जी तुसी, साथ ही साथ ये फसलें। और आज के व्लॉग में सिर्फ आपको दरियाए ब्यास ही दिखाएंगे। इस दरियाए ब्यास की जो ख़ास हमें जो अच्छी इसकी क्वालिटी लगी है वो ये थी कि जब राजोवाल की जो नहरें, जिन्हें हम जोड़ियाँ कहते हैं, राजोवाल की जो एक पक्की लैंक और जो दूसरी कच्ची, जब ये लैंक नहरें जो टूटी थी तो इसी दरिया ने उनका पानी अपने अंदर समाया था। तो इधर तकरीबन सारे जो इलाके थे वो इसकी वजह से महफूज रहे। नुकसान भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो 95% जो इसने अपने अंदर वो पानी जो है ना वो समा लिया था। उस वक्त ये काफ़ी चौड़ाई में थी, अब तकरीबन ये 1 एकड़ की चौड़ाई में रह गई है। 1 एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे भी थोड़ी है। जी हाँ, लेकिन ये बहुत, इसका जो सिरा है और जो जड़ है वो हमें आज तक नहीं पता, और ना ही किसी को पता है ये कहाँ से शुरू होती है। अगर इस पे चलना शुरू कर देना तो आप पूरा पाकिस्तान घूम लेंगे। और मुझे ये मैं वाज़े कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आप जो साथ हमारे पड़ोसी ममालिक है ना उनकी भी थोड़ी बहुत सैर कर लेंगे। ये इतनी लंबाई है इसकी, और ये काफ़ी ज़्यादा शहरों से भी गुज़र रहा होता है। ये उकाड़ा शहर ज़िला उकाड़ा में से गुज़र रहा है, दीपालपुर से गुज़र रहा है, और इसी तरह हुजरा शामकीम में ये जो इलाका है ये हुजरा शामकीम का इलाका है। और हुजरा शामकीम का इलाका जो अरसालदार और इसके साथ राजगढ़ से ये गुज़र रही है। तो ऐसे ही छोटे छोटे इलाकों से गुज़रते हुए ये जाती है चौक हुजरा से गुज़रती है, चौक हुजरा से गुज़र कर ये पाकिस्तानी पुल पे जा गुज़रती है। इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा इलाकों से गुज़र रही होती है, और ये गुज़रती नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी लंबाई के हिसाब से और चौड़ाई के हिसाब से इसकी आज तक खुदाई नहीं की गई, लेकिन लोगों ने साथ ही फसलें बना ली हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सामने जो ज़मीन पड़ी है वो भी इसी के हाथे की है, और साथ पड़ी भी बंजरी हुई है ये। तो इसमें मछली वगैरह भी आ जाती है जब पानी गर्मियों में आता है इसमें, और मछली के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें। इसका जो पानी है ना वो फसलों के लिए ज़्यादा मुफीद तो नहीं होता, लेकिन यहाँ लोग लगा ही लेते हैं। तो चढ़ कर दिखाते हैं, ये जो लोग हैं वो फसलों पर पानी जो इसका लगाते हैं, इसका पानी जो फसलों को लगाते हैं वो किस तरह से यहाँ से निकालते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो वो ट्यूबवेल जो लगाए हुए हैं उसका
जो क्या कहते हैं पंखा, वो इसमें सिर्फ रखा ही हुआ है। ऊपर से पीटर को चलाया और चलाने के बाद पंखा, इसका जो पानी है ना बोर करना पड़ता है और ना ही जो वो आपको गहराई तक जाना पड़ता है। तो साथ ही जो ना वो पानी मुहैया इस तरह से अपनी फसलों को दे लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह परिंदे भी आ जाते हैं इधर, और हर तरह के यहाँ पे परिंदे जो है ना वो मुयसर हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान का एक कल्चर है, और पाकिस्तान के कल्चर में जो ऐसी ऐसी चीज़ों का जो आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, ये आप देख रहे होंगे कि आजकल सर्दियों के सीज़न में जो है ना वो सरसों वगैरह होती है, अभी तो वो ख़त्म होगी, पक गई। तो जी हाँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं जिस तरह से ये लोग पानी इससे लगाते हैं अपनी फसलों को। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो ना वो दरियाए ब्यास, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको दिखाते हैं। ट्यूबवेल ये इस तरह से थोड़ा सा लगाते हैं, बोर वगैरह नहीं करना पड़ता। ये ऊपर इन्होंने पंखा रखा हुआ है, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि जो ना वो काफ़ी जो मैं दूर खड़ा हूँ, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर उन्होंने पंखा रखा हुआ है, और इसी तरह जो है ना वो आपको सामने दिखा रहा हूँ कि गंदम की फसल खड़ी है ना अभी, हाँ गंदम की है, तो उसको पानी लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पानी नहीं है, जब गर्मियों में यहाँ पानी आ जाता है ना, तो इधर इन्होंने ये बांधा हुआ है आगे से, ये वो जहाँ पे तोड़ा रखा हुआ है। और ये देख रहे हैं कि आप सूखा हुआ है अभी दरिया। और यहाँ पे तो इंतहाई हैरत की बात है कि यहाँ पे उन्होंने तो छोटी सी एक नदी बना दी है, इतना चौड़ाई में था और इतनी सी रह गया। और ये मज़े की बात यह है कि इसके दोनों जो किनारे हैं, दोनों किनारों पर सड़कें बनी हुई हैं, और वो भी कच्ची। और मैं इधर से आ रहा था 18D से, तो मैंने सोचा कि अपने गांव जाने से पहले जो ना वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लूँ। तो ये शॉर्टकट रास्ता भी था, और साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ व्लॉग। और ये आप देख रहे हैं कि बगैर खुदाई के कुआं, ये है बगैर खुदाई के कुआं। जी हाँ, और ये ट्यूबवेल जो लगाया है ये बगैर खुदाई के कुआं के ट्यूबवेल। हाँ, और इसके साथ यहाँ पे सरसों पकी हुई है, ये आपको दिखा देते हैं थोड़ी सी। हाँ, इंतहाई खूबसूरत फूल भी है, और माशाल्लाह ये सरसों वगैरह जो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काम आती है। इधर उन्होंने शकरकंदी लगाई सी, अब तो उन्होंने काट ली, सरखेज़ हो गया। और इन चीज़ों का यार अभी तक मुझे नहीं पता चला कि ये चीज़ें क्या होती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो ना वो इन तुमों के बारे में पूछते हैं, ये वाले। अब ये नहीं पता ये क्या होते हैं ये वाले। तो मैं अभी आपको इनकी पिक्चर भी बना देता हूँ, ये एक पिक्चर भी बना ली। और ये चीज़ें क्या है आपने ये मुझे बताना है कि इनको क्या बुलाते हैं। ये जो चिब्बड़ है, पंजाबी च चिब्बड़ सदे ने, चिब्बड़ नहीं है ये, एक और चीज़ ही है। इन्होंने की सदे ने ये तुसां हुण मैनू दसना है जी, कमेंट दे विच इंतज़ार करांगा। ते इहदे नाल ही सर्दी सी ते मैं भी जेह्ड़ा किसी कुसी तानी होई है, लिहाजा जेह्ड़ा तुहानू अज बस सैर ही करानी है दरिया दी। मज़ीद सोहनियां सोहनियां वीडियो थोड़े वास्ते लियावांगे। अगर मेरे चैनल ते नवें जे तो चैनल को सबसक्राइब कर दो, ते बैल आइकन के बटन को दबाना कभी भी ना भुल्लिया जे, क्योंकि हर न्यू वीडियो जी तुहाडे तक बआसानी पहुँच सके। ते आदा रखिया ढेरों सारा ख्याल। कुएं दे नाल मैनू भी दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अलैहि वसल्लम एवेन्यू, ये जो एवेन्यू है मतलब ये उन्होंने जो गली वगैरह निकाले हैं, जो सड़कें निकाले हैं, ये इस नाम से शुरू होती हैं।
और ये जो मीनार आपको दिखा रहा हूँ, इसके तीनों जानब ये लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों साइड पे जो है ना वो लिखे हुए हैं। और ये तीनों साइड पे इन्होंने क्या है, जी हाँ, जाना। और इस तरफ से देखते हैं ये तो बात ये है कि चारों यार खुलफाए राशिदीन के नाम पर इन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं हज़रत अली एवेन्यू। जी हाँ, ये ऊपर से सूरज थी, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें तो माशाल्लाह ये पौधा भी बहुत खूबसूरत है यार। ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है यार। अभी ये सारे प्लाट बिक चुके हैं, लेकिन इन प्लाट्स की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम है और बिजली वगैरह का भी, तो गैस वगैरह भी लगी हुई है। ये तराजू लगाया है यार। यहाँ पर इन्होंने ये जो रास्ता है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के एवेन्यू के नाम पर रखा है। अभी इधर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है, ड्यूटी पर नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो भी बना ली हमने आज। और आपको कुछ पार्किंग के साथ साथ नेचुरल भी दिखाएंगे आज। टाउन में जैसे ही इंटर होते तो सबसे पहले ये इन बातों पे अमल करना होता है। फिर ये सामने ये पार्क है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बिठाया होता है इन्होंने, जो कि टाउन में अमन अमान से लोगों को रहने में मदद फराहम करता है, यानी कि कोई गड़बड़ ना हो जाए यहाँ। तो सामने जो बोर्ड लगा है इधर उन्होंने लिखा हुआ है चिड़ियाघर पार्क, मस्जिद, बी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो ये जो खंबा लगा हुआ है ये बिजली का है, साथ ही ये ग्रेड स्टेशन है ना। एमबी शहजादे हुई ने फीस फूस तो नहीं लेंदे, पार्क जाने की फीस तो नहीं लेंदे, फ्री है। लो जी पार्क भी बिल्कुल फ्री है, कोई फीस वगैरह नहीं लेंदे। ये सामने आप देख सकते हैं ना, लोग काफ़ी बैठे हुए हैं। छुट्टी को नहीं दी जाने क्या में थोड़ा मिस्त्री काम में छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। आजकल आना नहीं आजकल मैं फिर क्या छुट्टी है इंदे छुट्टी भी काम है इंदे 2 छुट्टियां भी है महीने से। अच्छा 2 महीने छुट्टी है, कोई टेंशन नहीं है, ड्यूटी आदि मर्जी दी है कितने मर्जी लगे तो चाह पाए यारी हाथ बार पियो वो तो मालका ने देनी है, तो 2 किलो मर्जी बना पी नहीं तो आ भी आती मतलब कोई नहीं, मुंशी तो का और कौन मालिक तो नहीं आता होना फिर से। मालिक
ये बहुत बड़ा सारा ये अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजब अली और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब अली यूट्यूब चैनल। मैं आज अपने जो सामने आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त कुछ गांव का माहौल। असल में मैं आज थोड़ी सी सैर करने आया था बाकी, तो सोचा आपसे भी कुछ शेयर कर दूं, आपको भी दिखा दूं। वो नहीं, घर बैठे आप इंजॉय करें और सैर करें घर बैठे बैठे। सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मज़ीद सबसे बढ़कर जो मुझे खुशी है टीम काशिफ भाई से, जो टीम काशिफ भाई की टीम है जो, उनका मैं मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही काशिफ भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी चैनल बनाने में और ग्रो करने में बहुत सारी हेल्प की है और बहुत सारे मशवरे भी दिए थे, जिस पर अमल करके आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़, आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं कि मैं कुछ नेचुरल से व्लॉग लेके आता हूँ। ज़्यादा जो पहले जो व्लॉग थे उनमें कुछ आवाज़ की भी कमी थी और कुछ सही बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश से ही सब कुछ होता है। तो सर्दी भी बहुत है इसलिए ये काला कोट भी पहना हुआ है। वो फिल्म का डायलॉग है, ढिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया, ऐ इस करते पाए भाई, इस तेरी नहीं होंदा, ये तो बस पान जोगा ही है, धो लो तो पा लो। तो इहदे नाल ही तुहानूं विखा रहे जी हुण बाग। बैक कैमरे ते ले जाने आ तुहानूं इंशाल्लाह। बैक साइड ते ये बाग है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वीडियो तुसी लाइक ज़रूर करो, बाग की सैर करो घर बैठे। 2-3 मिनट की जी वीडियो बनाई दी, उन्होंने बनाने का मकसद यही हुंदा है कि तुहाडे नाल चंद गल्लां शेयर कीतियां जान और कुछ माहौल विखाया जाए। माहौल की विखाना हुंदा है, अक्सर लोग व्लॉग बनाते ने, वो तुहानूं इस तरह का माहौल मुहैया विच कर दिंदे ने कि बंदे नूं व्लॉग बनाने बड़ा मुश्किल च लगदा है। ऐसी कोई गल नहीं, यूट्यूब ते कम करो। जेह्ड़े भाई चैनल बना रहे ने या व्लॉग वेख रहे ने, उन्हां वास्ते खसूसी पैकेज ये है कि नेचुरल ते भी व्लॉग बना लिया करो, ठीक है। इस तो हट के तुसी हुण वेख रहे जे बाग काफ़ी ज़्यादा खोजी है, नाल नींबू लाए उन्हें लीमू का, ये लीमू के पौधे लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं उन्होंने गंदम बीजी हुई है। अभी गंदम जो छोटी है ये तकरीबन मुख्तसर सी बात कि रमज़ान में जो ना, रमज़ान से पहले पहले इसकी कटाई शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही मैं तो सैर करने आया था इसलिए आपसे भी कुछ सोचा आपको भी दिखा दूं मैं क्या देख रहा हूँ। तो वीडियोस में और भी बहुत से चीज़ें, बात करने का मकसद और वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप कुछ भी यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। माशाल्लाह ये बाग बहुत खूबसूरत है। और ये लीमू के दरख्त की जो वीडियो, इससे चंद मिनट पहले मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है इन पौधों की, उनमें सिर्फ लीमू और ये सामने वाला बाग कुछ दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही अब आपसे कुछ यूँ शेयर करते हैं कि वीडियोस पे ना व्यू बहुत ही कम मिलते हैं, अक्सर ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत करें इंशाल्लाह आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और आपका चैनल ग्रो भी करेगा। साथ साथ मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि पहले मैंने एक चैनल बनाया था जिसका नाम था रजब टिप्स, वो चैनल तो डिलीट कर दिया, न्यू चैनल बनाया, फिर उसमें मैंने काम नहीं किया था।
मैंने सोचा कि जब भी एक नया चैनल बनाऊंगा तो चैनल में आपको एक टिप्स ज़रूर दूंगा। टिप्स ये है कि सर्दियों में पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, और उसको पूरा करने के लिए हम ज़्यादा पानी तो नहीं पी सकते गर्मियों के तरह, जिस तरह गर्मियों में ज़्यादा पानी पिया जाता है। तो आपको एक टिप्स ये दूंगा कि सर्दियों में माल्टे, आप उनसे अपना जो विटामिन वो बढ़ा सकते हैं, वो पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन की सेटिंग को ऑल पर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजब और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। तो मैं आज साफ सिटी आया था तो सोचा आपको भी कुछ यहाँ का माहौल दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है मेन सड़क इन्होंने निकाली है जो कि चौक गुजरा शाम कीम से आती जाती है। और साथ ही आप सकते हैं जी हाँ, ये जो सड़क है इन्होंने निकाली है, ये कसूर रोड पर लगती है। और इधर से आप देखें तो ये चौक गुजरा बाजार निकलती है। तो माशाल्लाह इन्होंने खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग भी की हुई है। सामने ये देखें, आप घोड़ा भी देख सकते हैं माशाल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा जो प्योर बनाया हुआ है। वो सामने जो आपको एक मीनार नज़र आ रहा है, इस पर इन्होंने माशाल्लाह अर्रहमान अल मालिक अल मुहीमिनो, ये सब अल्लाह के नाम, और काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत इन्होंने बनाया है टोन। तो आज के व्लॉग में हम इस टाउन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। छोटा सा टाउन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलते हैं अपने मेन व्लॉग की जानब। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, ये माहौल चेक करें पहले आप। जी हाँ, इन्होंने ब्लॉग की शक्ल में काफ़ी ज़्यादा, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु एवेन्यू है, और टावर भी लगे हुए हैं इधर काफ़ी ज़्यादा। ये तकरीबन ये सारी जो है वो जगह जो है, ये सब प्लाट जो है वो बिक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं ना। तो मैं बैठा था अपनी बाइक पे, तो फ़िलहाल आपको जो दिखा रहा हूँ इंसाफ सिटी चौक गुजरा पे साइड पे आपको लेके चलते हैं कि इन्होंने ये देखें, ये इन्होंने इधर मस्जिद ब्लॉक और पार्क वगैरह इस तरफ है। ये सामने मस्जिद है। ये ब्लॉक A27 1888 टू 93 और 26 से 78 टू 87 तक इधर जो है वो पार्किंग एरिया है सब। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो माहौल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं आपको ग्राउंड भी है इधर, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, और ग्राउंड से लगभग जो है ग्राउंड इन्होंने निकाला है वो तकरीबन अभी सड़कों पे ये यार, ये रही मेरी बाइक टूटी फूटी। तो ये प्लाट है, काफ़ी ज़्यादा लंबाई में प्लाट है यार, और काफ़ी खूबसूरत भी है। और साथ जी हाँ, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ जो ये मैंने आपको छोटा सा मीनार दिखाया था जिस पर कुछ नेम वगैरह लिखे थे, और अल्लाह ताला के जो नेम हैं 99 नेम वो लिखे, ये देख सकते हैं आप।
ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवेन्यू। ये जो एवेन्यू है मतलब ये उन्होंने जो गली वगैरह निकाले हैं, जो सड़कें निकाले हैं, ये इस नाम से शुरू होती हैं। और ये जो मीनार आपको दिखा रहा हूँ इसके तीनों जानब ये लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों साइड पे जो है ना वो लिखे हुए हैं। और ये तीनों साइड पे नाम क्या है, जी हाँ जाना। और इस तरफ से देखते हैं ये तो बात ये है कि चारों यार खुलफाए राशिदीन के नाम पर इन्होंने ये सब कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको एक तो साइड पे जो ना वो गंदम दिखा रहा था और दूसरी साइड पे एक खाला दिखा रहा था। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये सेहती को मंजूर हुआ है और माशाल्लाह ये बना भी रहे हैं और काम जारी है इंशाल्लाह। और जो फसलों को जो पानी है वो सरकारी पानी जिसे नहर का पानी कहते हैं वो भी सराब हो जाएगा। तो मज़ीद ये मेरा स्कूल है पीछे, यहाँ से मैंने प्राइमरी की थी 5 यहाँ पे की, इसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद कॉलेज, इसके बाद अब तो माशाल्लाह जॉब करता हूँ। तो देखने में बात आई है कि यार ये व्लॉग जो है ना, आज के व्लॉग में आपको मैं अपने स्कूल की सैर करवाऊँगा। और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि दीवार ये असल में ये ग्राउंड है, दीवार ग्राउंड की हुई है। तो मेन गेट आगे, स्कूल में 2 कमरे हैं, एक बरामदा है और ग्राउंड अंदर भी है और बाहर भी है। फिर मज़े की बात यह है कि स्कूल जो है ना वो मेन सड़क पे है जो गांव को जाती है कि मेन गेट। यहाँ पे कुछ PEIMA की हिदायत लिखी हैं। जी हाँ, शिकायत से ऑफिस वगैरह वेबसाइट ये उन्होंने दी हुई है। और ये मेन गेट है, ये देख सकते हैं। तो आओ तालीम हासिल करें। ये कार्टून निकल मटा दिए इन्होंने, नई पेंटिंग कराएंगे। आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप, ये सब ग्राउंड है और इधर हम खेलते भी थे और आज भी माशाल्लाह इधर आके वो हम खेलती हैं। आज तो जो है ना वो छुट्टी अभी हुई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने नहीं लाना चाहता मैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि आज माशाल्लाह धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है और धूप में जो वो एंजॉयमेंट भी हो रहा है मेरा भी, और ये रहा एंजॉयमेंट। और आप देख सकते हैं कि मैं भी इस वक्त यहाँ पे वॉक करना थोड़ी सा आया था, तो सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो इससे पहले आपको बहुत से व्लॉग दिखाए जो कि नेचुरल थे, चलो इसमें भी बहुत सारे नेचुरल आपको दिखा रहा हूँ। और ये कैमरा भी अभी मैंने सही पकड़ लिया है। अभी जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सरकारी हमारे खाले की। और ये बहुत बड़ा स्कूल है, इतना छोटा नहीं है यार। ये आप देख सकते हैं कि इधर दीवार भी टूटी हुई थी, तो ये दीवार भी नहीं बनाई। और वो देखें विकटें हैं जो अभी खड़ी हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे मैच भी करवाते हैं लोग। और फिर वो बहुत सारे ये कच्ची सड़क है और ये खाला नया तमीर हो रहा है पक्का। अब ये उन्होंने खुदाई कर ली है, तो सफाई का जैसे करते आ रहे हैं और वैसे ही इसमें से ये टाइल्स पड़ी हैं सामने, अब देख रहे हैं ये लगाते हैं। तो हाँ, आज की सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही। और इससे मज़ीद कबल ये है कि वो आपको दिखा रहा हूँ जो इन्होंने पक्का जो खड़ा करना है किस तरह करते हैं और ये क्या चीज़ें इसमें लगाते हैं। पहले इन्होंने खुदाई की, खुदाई तकरीबन 5 फुट से ज़्यादा ही है
और ये अभी तो इन्होंने ये प्लेट्स रखनी है, ये प्लेट्स के नंबर उन्होंने लगाए हुए हैं। हाँ, तो देखते हैं। साथ ही येड़ा आ रहा है वो सड़क पे भेड़ों का, वो देखते हैं यार। आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और आप देख रहे हैं रजब व्लॉग्स। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, जितने भाई दोस्त और गाइस जो जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं, सबको मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो आपके लिए मज़ीद अच्छे व्लॉग लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। साथ ही अल्लाह हाफिज़ से पहले साथ ही आप बैक कैमरे जो वेख सकते जो तुसी अजड़ आ जड़ियां और चार साड़ियां खड़ियां ने ए वालियां शहजादे खड़े ने चार पर साई अजड़ी आया होया है थे इधर भी पिंड बाजी नजर आ रहे फिर सुनून आ रहे अपना व्लॉग इस तरह दी हुंदे ने व्लॉगिंग दा चैनल से व्लॉग डाल देता है जी लिहाजा हुन जड़ा तुसी बाबे नूं लगे जा रहे हैं छावे छावे कर रहे हैं जी बकरियां नूं सर्दी सी धुप्प भी बड़ी लगी है छावे करने हैं जी इन्हां नूं जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजब अली और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं फसलों की सैर करने आया था तो सोचा आपको भी कुछ दिखा दूँ, तो चलते हैं बैक कैमरे की जानब। अगर इससे पहले बैक जाने से पहले आपको एक बात कह दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, लाइक और बेल आइकन के बटन को हरगिज़
दबाना मत भूलें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन नई वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने ब्लॉग की जानब। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है वो आलू की फसल है। आलू के साथ साथ ये सरसों भी आ रही है। जी हाँ, तो बैक कैमरा आपको लेकर जाते हैं। लीजिए ले बैक कैमरा। ये जो हरा भरा खेत ये है गंदम। अभी कुछ महीनों के बाद तकरीबन ये 1.5 माह ले जाएगी, फिर पक जाएगी गंदम। और ये वाहिद फसल है जो पूरा साल खाई जाती है। बाकी जो फसलें हैं वो तकरीबन मुयसर होती रहती हैं, लेकिन ये जो फसल है ये सियाल में ही होती है, सर्दियों में। और ये वाहिद फसल है जो सर्दियों में ही बोई जाती है, गर्मियों के एंड पे और गर्मियों के शुरू में ही काटी जाती है। तकरीबन ये पूरा साल ही खाई जाती है, 3 माह की ये फसलें। और आप देख रहे हैं इस वक्त ये साथ आलू की फसल है और आलू के साथ वो नए आगे जो है ना वो कमाद आ रहा है। तो साथ ही मेरा गांव आ जाएगा इंशाल्लाह। और मैं तो पहुंच चुका। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। बेल आइकन के बटन को दबाने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपना फीडबैक कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और हमने जो भी व्लॉग बनाया है इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और मेरा जो व्लॉग होगा वो तकरीबन 97% जो है, मैं 100% तो नहीं कहता, 97% जो है ना वो नेचुरल ही होगा। तो मैंने जो है ना वो कहा कि टाइम टू नेचुरल कि यार नेचुरल भी यूट्यूबर को दिखानी चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जो नेचुरल नहीं दिखा रहे होते, बस लेक्चर दिया और उनको देख देख के जो ना वो वीडियो का वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन मैं आपको कुछ नेचुरल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजब और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। तो मैं आज साफ सिटी आया था तो सोचा आपको भी कुछ यहाँ का मोड़ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है मेन सड़क इन्होंने निकाली है जो कि चौक उजरा शाम कीम से आती जाती है। और साथ ही आप देख सकते हैं जी हाँ, ये जो सड़क है इन्होंने निकाली है ये कसूर रोड पर लगती है। और इधर से आप देखें तो ये चौक उजरा बाजार निकलती है। तो माशाल्लाह इन्होंने खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग भी की हुई है। सामने ये देखें आप घोड़ा भी देख सकते हैं माशाल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा जो प्योर बनाया हुआ है। वो सामने जो आपको एक मीनार नज़र आ रहा है इस पर इन्होंने माशाल्लाह अर्रहमान अलमालिक अलमुहीन मुहीमिनो ये सब अल्लाह के नाम और काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत इन्होंने बनाया है टोन। तो आज के व्लॉग में हम इस टोन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। छोटा सा टोन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलते हैं अपने मेन व्लॉग की जानब। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, ये माहौल चेक करें पहले आप। जी हाँ, इन्होंने ब्लॉग की शक्ल में काफ़ी ज़्यादा ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु एवेन्यू है और टावर भी लगे हुए हैं इधर। काफ़ी ज़्यादा ये तकरीबन ये सारी जो है वो जगह जो है ये सब प्लाट जो है वो बिक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं ना। तो मैं बैठा था अपनी बाइक पे। तो फ़िलहाल आपको जो दिखा रहा हूँ
इंसाफ सिटी चौक हुजरा पे साइड पे आपको लेके चलते हैं कि इन्होंने ये देखें, ये इन्होंने इधर मस्जिद ब्लॉक और पार्क वगैरह इस तरफ है। ये सामने मस्जिद है। ये ब्लॉक A27 1888 to 93 और 26 से 78 to 87 तक इधर जो है वो पार्किंग एरिया है सब। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो माहौल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मेन आपको ग्राउंड भी है इधर, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं। और ग्राउंड से लगभग जो है ग्राउंड इन्होंने निकाला है वो तकरीबन अभी सड़कों पे ये यार ये रही मेरी बाइक टूटी फूटी। तो ये प्लाट है, काफ़ी ज़्यादा लंबाई में प्लाट है यार, और काफ़ी खूबसूरत भी है। और साथ जी हाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ जो ये मैंने आपको छोटा सा मीनार दिखाया था जिस पर कुछ नेम वगैरह लिखे थे, और अल्लाह ताला के जो नेम हैं 99 नेम वो लिखे। ये देख सकते हैं आप। ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवेन्यू। ये जो एवेन्यू है मतलब ये उन्होंने जो गली वगैरह निकाले हैं, जो सड़कें निकाले हैं, ये इस नाम से शुरू होती हैं। और ये जो मीनार आपको दिखा रहा हूँ इसके तीनों जानब ये लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों साइड पे जो है ना वो लिखे हुए हैं। और ये तीनों साइड पे नाम क्या है, जी हाँ जाना। और इस तरफ से देखते हैं तो बात यह है कि चारों यार खुलफाए राशिदीन के नाम पर इन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं हज़रत अली एवेन्यू, जी हाँ। ये ऊपर से सूरज थी, हाँ ये देख सकते हैं आप, ये देखें। तो माशाल्लाह ये पौधा भी बहुत खूबसूरत है यार। ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है यार। अभी ये सारे प्लाट बिक चुके हैं, लेकिन इन प्लाट्स की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम है और बिजली वगैरह का भी, तो गैस वगैरह भी लगी हुई है। ये तराजू लगाया है यार। यहाँ पर इन्होंने ये जो रास्ता है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के एवेन्यू के नाम पर रखा है। अभी इधर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है, ड्यूटी पर नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो भी बना ली हमने आज, और आपको कुछ पार्किंग के साथ साथ नेचुरल भी दिखाएंगे आज।
में जैसे ही इंटर होते तो सबसे पहले ये इन बातों पे अमल करना होता है। फिर ये सामने ये पार्क है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बिठाया होता है इन्होंने, जो कि टाउन में अमन व अमान से लोगों को रहने में मदद फराहम करता है, यानी कि कोई गड़बड़ ना हो जाए यहाँ। तो सामने जो बोर्ड लगा है इधर उन्होंने लिखा हुआ है चिड़ियाघर पार्क, मस्जिद, बी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो ये जो खंबा लगा हुआ है ये बिजली का है, साथ ही ये ग्रेड स्टेशन है ना। अम्बी शहजादे हुई ने फीस फूस तो नहीं लेंदे, पार्क से जाने की फीस तो नहीं लेंदे, फ्री है। लो जी पार्क भी बिल्कुल फ्री है, कोई फीस वगैरह नहीं लेंदे। ये सामने आप देख सकते हैं ना, लोग काफ़ी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने छुट्टी को नहीं दी, यानी क्या में थोड़ा मिस्त्री काम में छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। आज कलाना में आज कलाना अगर बेकार छुट्टी है इंदे ये भी काम है, इंदे 2 छुट्टियां भी है महीने से। अच्छा 2 महीने छुट्टियां हैं, कोई टेंशन नहीं है। ड्यूटी आदि मर्जी दी है कितने मर्जी लगे मेरे भाई। चाह बाहर दिहाड़ी हाथ भर पियो वो तो मालका ने देनी है, तो 2 किलो मर्जी मेरा पी ले, नहीं तो आ भी आती मतलब कोई नहीं, उन चीज है वो का और कोई नहीं, मालिक तो नहीं आता होना फिर से। मालिक को नहीं ये बहुत बड़ा सारा ये हैं। ये जो लोग हैं वो फसलों पर पानी जो इसका लगाते हैं, इसका पानी जो फसलों को लगाते हैं वो किस तरह से यहाँ से निकालते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो वो पीटर ट्यूबवेल जो लगाए हुए हैं उसका जो क्या कहते हैं पंखा, वो इसमें सिर्फ रखा ही हुआ है। ऊपर से पीटर को चलाया और चलाने के बाद पंखा इसका जो पानी है ना बोर करना पड़ता है और ना ही जो वो आपको गहराई तक जाना पड़ता है। तो साथ ही जो ना वो पानी मुहैया इस तरह से अपने फसलों को दे लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह परिंदे भी आ जाते हैं इधर, और हर तरह के यहाँ पे परिंदे जो है ना वो मुयस्सर हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान का एक कल्चर है, और पाकिस्तान के कल्चर में जो ऐसी चीज़ों का जो आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, ये आप देख रहे होंगे कि आजकल सर्दियों के सीज़न में जो है ना वो सरसों वगैरह होती है, अभी तो वो ख़त्म होगी, पक गई। तो जी हाँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं जिस तरह से ये लोग पानी इससे लगाते हैं अपनी फसलों को। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो ना वो दरियाए ब्यास, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको दिखाते हैं। ट्यूबवेल ये इस तरह से थोड़ा सा लगाते हैं, बोर वगैरह नहीं करना पड़ता। ये ऊपर इन्होंने पंखा रखा हुआ है, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि जो ना वो काफ़ी जो मैं दूर खड़ा हूँ, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर उन्होंने पंखा रखा हुआ है, और इसी तरह जो है ना वो आपको सामने दिखा रहा हूँ कि गंदम की फसल खड़ी है ना अभी, हाँ गंदम की है, तो उसको पानी लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पानी नहीं है, जब गर्मियों में यहाँ पानी आ जाता है ना तो इधर इन्होंने ये बांधा हुआ है आगे से, ये वो जहाँ पे तोड़ा रखा हुआ है। और ये देख रहे हैं कि आप सूखा हुआ है अभी दरिया, और यहाँ पे तो इंतहाई हैरत की बात है कि यहाँ पे उन्होंने तो छोटी सी एक नदी बना दी है, इतना चौड़ाई में था और इतनी सी रह गया। और मज़े की बात यह है कि इसके दोनों जो किनारे हैं, दोनों किनारों पर सड़कें बनी हुई हैं और वो भी कच्ची। और मैं इधर से आ रहा था 18D से, तो मैंने सोचा कि अपने गांव जाने से पहले जो ना वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लूँ। तो ये शॉर्टकट रास्ता भी था और
साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ व्लॉग। और ये आप देख रहे हैं कि बगैर खुदाई के कुआं, ये है बगैर खुदाई के कुआं। जी हाँ, और ये ट्यूबवेल जो लगाया है ये बगैर खुदाई के कुआं के ट्यूबवेल। हाँ, और इसके साथ यहाँ पे सरसों पकी हुई है, ये आपको दिखा देते थोड़ी सी। हाँ, इंतहाई खूबसूरत फूल भी है। और माशाल्लाह ये सरसों वगैरह जो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काम आती है। इधर उन्होंने शकरकंदी लगाई सी, अब तो उन्होंने काट ली, सरखेज हो गया। और इन चीज़ों का यार अभी तक मुझे नहीं पता चला कि ये चीज़ें क्या होती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो ना वो इन तुमों के बारे में पूछते हैं, ये वाले। अब ये नहीं पता ये क्या होते हैं ये वाले। तो मैं अभी आपको इनकी पिक्चर भी बना देता हूँ, ये एक पिक्चर भी बना ली। और ये चीज़ें क्या है आपने ये मुझे बताना है कि इनको क्या बुलाते हैं। ये जो चिब्बड़ है, पंजाबी से चिब्बड़ सदे ने, चिब्बड़ नहीं है ये, एक और चीज़ ही है। इन्होंने की सदे ने ये तुसा हुण मैनू दसना है जी कमेंट दे विच, इंतज़ार करांगा। ते इहदे नाल ही सर्दी सी ते मैं भी जड़ा किसी कुसी तानी हुई है, लिहाजा जड़ा तुहानू अज बस सैर ही करानी है दरिया दी। मज़ीद सोहनिया सोहनिया वीडियो थोड़े वास्ते लियावांगे। अगर मेरे चैनल ते नवे जे तो चैनल को सबसक्राइब कर दो, ते बैल आइकन दे बटन दबाना कभी भी ना भुल्लिया जे, क्योंकि हर न्यू वीडियो जी तुहाडे तक बसाने पहुँच सके। ते आदा रखिया ढेरों सारा ख्याल। कुएं दे नाल मैनू भी दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपनी मर्चान, जो कि मैं 2000 से शुरू की थी। तो देखिए, हाँ भाई तू की लेना, ये रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये दुकान छोटी सी, जो कि मैंने 2000 रुपये में बनाई। तो आप भी छोटा सा कारोबार करें। लिया सामान, इसकी ये सेटिंग की, ये टेबल बनाया, और साथ ही ये अभी दुकान की जो छत वगैरह है वो लगाने वाली है। तो नीचे अंदर हमने बोर भी कराया मोटर का। और ये बूम बूम तो यार आज ख़त्म ही हो गई, वो वाई नॉट ख़त्म हो गई है। ये पड़ी है स्मेली, जो है चॉकलेट, ये सब जुम्बी वगैरह। और ये है सर्दियों में खाने। तो कुछ थोड़ा मोटा सामान हमने चाय पत्ती वगैरह का भी रखा हुआ है, सर्फ साबुन का भी। और ये कुछ ऐसा सामान है, नमक वगैरह भी, बोनस वगैरह भी रखा हुआ है। अभी ये जो सामान आपको दिखाया जा रहा है, अभी आता हूँ ना, रोटी भी खा लेते हैं यहाँ। तो कुछ दालें वगैरह भी हैं, ये बिस्कुट वगैरह है, इतना सा सामान, बोतलें वगैरह भी। ये पापड़ है, ये पापड़ कौन से भाई, ये है मटर पुलाव, क्या मटर पुलाव। और ये हैं हमारे मकई से तैयार किए गए पोक के करारी स्नैक्स। तो सैया भी इनके साथ, सुप्रीम पत्ती अब एक रह गई, छोड़ो यार। अब इसके गोल्ड है सुपर, ये सुपर का डुप्लीकेट आ चुका है भाई मार्केट में। यहाँ पे हम लगाए हैं चने, ये अखरोट,
जो अखरोट होते हैं, और ये हमारा कंड। ये छोटे से ग्राहक भी आए हुए हैं, मेहंदी भी पई है, सारा कुछ ही है यार। छोटी सी मर्चेंट में बहुत हैवी सी रीलें भी रखी हुई हैं। आ देखो सवार। तो हाँ छुट्टियां ने सारियां ही आदियां पईयां ने यार। इन्ना की समान है तो कोई गल नहीं यार। अच्छा भाई, तो ये स्कूटर वगैरह भी खिलौने भी रखे हुए ने बच्चियां दे। अदर आ भाई यार, मोटरसाइकिल हम सीधा करो यार। अच्छा जी, ने मोटरसाइकिल बंटियां कोको मोको ये सब चीजें ये इधर पड़ी हैं और डिगन दे सारियां भावें डिगन दे। खैर है, तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। तो हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ रजब और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। अपना रखिएगा ढेरों ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजब अली और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब व्लॉग्स। तो व्लॉग्स के चैनल के साथ साथ आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। आप घर बैठे उससे लाखों कमा सकते हैं, लाखों को छोड़े करोड़ों कमा सकते हैं। ये हज़ारों और लाखों की बात तो अलग है, करोड़ों कमा सकते हैं वो भी एक दिन में। तो आप मेरी वीडियो को फुल देखें। तो चलते हैं पहले अपने इस काम को सर अंजाम देने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वो एंड पे कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शुरू में लाइक कर देते, बाद में अनलाइक कर देते। यार ये वीडियो को हमने देखा, हमें समझ नहीं आई, तो लाइक तो किया था पहले लेकिन अनलाइक कर देते। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक एंड पे कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। तो इस ऐप का जो नाम है वो है मरकज़ ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। तो मैं अब मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ, डाउनलोड कैसे करना है और इसके साथ वहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपने अपना मुनाफा कैसे कमाना है, आपने ऑर्डर कैसे देने हैं। ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो के साथ दिखाने वाला हूँ। तो वेट होया ख़त्म। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब। तो आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाना है आपने सर्च बार में। यहाँ पर आपने लिखना है मरकज़ ऐप। ये मरकज़ ऐप आ गया। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरा तो पहले इंस्टॉल है तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो ये हो चुका है ओपन हमारे सामने। मैंने यहाँ पे लॉगिन भी किया हुआ है। तो लॉगिन करने के लिए ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने एक आपका ऑर्डर वेरीफाई ना होने की सूरत में ये कैंसिल करवाया था। एक ऑर्डर आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, एक मैंने ऑर्डर दिया हुआ था। तो आपको इस ऐप में बहुत सारे जो हैं फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपने कैटेगरी में जाना है। यहाँ से आपने जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है, जिसको भी यहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी बनाई हुई है, इधर कॉस्मेटिक्स और वुमेन अनस्टिच्ड, यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
ब्रांड्स वगैरह भी पड़े हैं इधर। तो ब्रांड्स में क्या है भाई, बैग, जो, चेफ स्पॉट, एसके कुकवेयर। तो इसी तरह सूट वगैरह भी हैं इधर। डेली यूज़ आइटम पे जाने के बाद आप अगर घर में हैं तो मोबाइल एसेसरीज़, होम एसेसरीज़, किचन एसेसरीज़, टॉयलेट एसेसरीज़, जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो आप इससे मंगवा सकते हैं। तो शर्ट्स वगैरह, हुडीज़, मैन जैकेट्स, मैन ट्राउज़र, जो भी आपको चाहिए यहाँ से। और मज़े की बात यह है कि आप बुक्स भी मंगवा सकते हैं। तो ये देखें, ऑटोबायोग्राफ़ी, बायोग्राफ़ी, फैक्शन बुक, और इसके अलावा पोएट्री बुक्स, और भी पॉलिटिक्स, हिस्ट्री बुक्स वगैरह आप मंगवा सकते हैं। तो इसको मंगवाने के लिए आपने कोई भी इधर से, मैं तो आज मंगवाने वाला हूँ यार, क्या मंगवाने, एसेसरीज़ में मैं मंगवाने वाला हूँ एक वॉच, जो कि मेंस वॉच है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी ये शो हो जाती है इसकी पिक्चर्स वगैरह, ये इनके रेट्स वगैरह आ चुके हैं। तो आपने कौन सी वाली मंगवानी है ये आपको पता है। मैं तो मंगवाने वाला हूँ भाई सस्ती सी में, ये वाली मंगाने, क्लासिक एनालॉग वॉच, जो कि 900 रुपये की है इधर। अभी ये शो हो रही है। तो ये देखें, ये आपको साथ प्रोडक्ट कोड भी दे रहा है, MJ 86400024ASONS। तो ये हमारे आ गए मेंस क्लासिक एनालॉग। इसके हम पिक्चर्स देख लेते हैं यहाँ से। इन्होंने 3-4 पिक्चर दी हुई हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ से उन्होंने लिखा स्टैंडर्ड साइज़, ठीक है, मटेरियल लेदर, प्रोडक्ट टाइप, रिस्ट में वॉच डिटेल, स्ट्रैप मटेरियल लेदर, मूवमेंट कर्स, वैचर रेसिस्ट, सी मोर, बहुत सारी इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है पैकेज इंक्लूड्स वन नेक वॉच। नोट, यहाँ पे नोट फरमा लें कि ये देयर माइट बी एन एरर ऑफ 1 से 3 cm टू डू मैनुअल मेजरमेंट। ये आपके मतलब हाथ की होगी घड़ी। और यहाँ से आपने इसकी ये जो डाउनलोड्स लिखा है इस पर क्लिक कर लें। पहले यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई। ये इमेज जो है वो 3 इमेज जो शो हुई थी वो शो हो चुकी हैं, वो हमारी डाउनलोड्स हो जाएंगी। ये डाउनलोड हुआ कंप्लीट। यहाँ से आपने कॉपी डिटेल कर लेना है, ये डिटेल होगी कॉपी। और यहाँ पे आपने, ये उन्होंने बताया है कि नीचे उन्होंने अरसलान ऑनलाइन शॉपिंग्स का बता दिया है, उधर से मिलेगी। तो लेकिन हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हम जाएंगे प्लेस ऑर्डर पे। यहाँ पे हमने इसकी प्राइस जो है, होलसेल रेट जो है वो 900 रुपये है। डिलीवरी चार्जर्स 125 रुपये, और ये मिलेगी आपको 1025 रुपये में घर बैठे। तो अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट मैनेज करें। मैं कर लेता हूँ इस घड़ी का 100 रुपये। ये आरसी तोड़ते हैं, आप जितना लगाए लगा लें। और यहाँ से आपने कितनी वॉच मंगवानी है, यहाँ पे आप उनकी प्लस पे जाके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही चाहिए अभी। तो यहाँ पे एक करके मैंने यहाँ पे अब ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है। या मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कस्टमर एड्रेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना नेम वगैरह लिखूँगा। मेरा नाम है रजब, और यहाँ पे मैं रजब लिख देता हूँ, JB एली। और नीचे मैंने अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दिया, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसी तरह आपने भी अपना फ़ोन नंबर और ये चीज़ें वगैरह इंटर करके, तो ये आरसी है फ़ोन नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इससे आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। तो मैंने ये भी लिख दिया। आगे आ गया जी प्रोवेंस, कि आप किस सूबे से हैं। तो मैं हूँ पंजाब से, तो मैं पंजाब लगाऊंगा। आपका सिटी कौन सा है, तो आपने अपने सिटी का यहाँ से आपको
पाकिस्तान के सभी सिटीज़ मिल जाएंगे, सभी शहर मिल जाएंगे। आपने कोई भी यहाँ पे लगाना है, लेकिन जो आपका हो। तो मेरा है हुजरा शामकीन, तो मैं ये लगा देता हूँ। अब वो पूछ रहा है आपका सेक्टर एरिया, मतलब आपका सेक्टर एरिया जो है वो एरिया, ब्लॉक, एरिया नेम, आपका जो गांव है या आपका शहर है, तो वो आप लगाएंगे। तो मेरा है इमदाद कॉलोनी। यहाँ पे हमारा जो शहर है वो मोहल्ला इस्लामपुरा है, तो मैं लगा देता हूँ मोहल्ला इस्लामपुरा। वो लगा दिया मैंने। ये लगाने के बाद अब मैं फुल एड्रेस अपना लिख रहा हूँ। तो मेरा हाउस नंबर है हाउस नंबर 765 और यहाँ पे मशहूर जगह जो है वो हमें लगती है इमाम बारगाह। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपका रिकमेंडेड पोस्ट EX पे आपके सिलेक्ट एरिया में बेहतर डिलीवरी 125 रुपये में आपको पहुँच चुकी है। अब ये 125 रुपये जो करियर पार्टनर है वो हो चुकी। तो कस्टमर की प्राइस 1125 रुपये बनती है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 125 रुपये उन्होंने कहा है कि डिलीवरी चार्जेस हैं, ये देने होंगे आपको, ये भी हम देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा ये एड्रेस आ गया, हाउस नंबर 765 मोहल्ला इस्लामपुरा, हुजरा शामकीन, मशहूर जगह इमाम बारगाह। फ़ोन नंबर मेरा आ गया। और साथ ही उन्होंने ये भी ऑप्शन दिए हैं कि अगर यहाँ पे कोई गलती वगैरह है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट वगैरह लिखी हुई थी वो ये सामने 900 रुपये होलसेल रेट है, 100 रुपये मैंने प्रॉफिट दिया अपना लेना है, और 125 रुपये जो मेरे डिलीवरी चार्जेस हैं। तो मेरा टोटल बैलेंस बनता है 1125 रुपये। तो यहाँ पे जाकर मैं कर दूँगा प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर में, तो ये लोडिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सप्लायर की तरफ से स्टॉक ऑर्डर प्लेस तो हो चुका है। नीचे जो लिखा है वो लिखा है सप्लायर की तरफ से स्टॉक कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर बेचा जाएगा। ऑर्डर डिलीवर होने में 4 से 6 दिन लगेंगे। उन्होंने लिखा है सक्सेसफुल डिलीवरी की सूरत में आपका प्रॉफिट 48 से 72 घंटे में आपके डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड में भेज दिया जाएगा। आपके कस्टमर को ऑर्डर रजब अली रिपेयरिंग लैब के नाम से डिलीवर होगा। तो ये जो रजब अली रिपेयरिंग लैब जो आया, ये मैंने अपने इस अकाउंट्स का नाम लिखा है। इसका मैंने ये समझ लें कि ये शॉप का एक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा और ये घर दे के जाएंगे। तो गेट होम पे जाते हैं हम। अब आपने क्या करना है, आपने अपना इधर अकाउंट जो बनाया है उसको आपने करना है बिज़नेस डिटेल में। तो मेरा नाम है बिज़नेस नेम रजब अली रिपेयरिंग, ये उधर शो हुआ था, ये वो मैंने नीचे नंबर भी दिया। और मोज़ा सेती के नाम से जो मेरी जीमेल बनी है वो भी मैंने दे दी। और ये मेरा मुकम्मल नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है। तो इस तरह आप भी घर बैठे थोड़े से मुनाफे में बहुत कुछ। तो व्यूअर्स, आपने देखा, मैंने आपको एक एक तरीका भी बताया। और इसी तरह आप भी घर बैठे अपना प्रॉफिट थोड़ा लगा लें, कोई बात नहीं, कस्टमर्स वगैरह को लगा लें। तो जो कॉपी हमने ये प्रिंट्स वगैरह किए थे उनको हमने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी ग्रुप में शेयर कैसे करने हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो चलते हैं हम, जो हमने उधर मरकज़ ऐप से कॉपीज़ की थी, डिटेल्स वाश की, तो हम जाएंगे व्हाट्सएप में। तो यहाँ पे हमने किसी भी ग्रुप्स वगैरह में वो शेयर कर देनी है ताकि हमें मज़ीद उसके जो है वो ऑर्डर मिल सके और हम उनको आगे रिप्लेस कर सकें, आगे भेज सकें। और मज़े की बात, जो मैंने रिप्लेस बोला है, ये आपको कोई चीज़
अगर आपके पसंद नहीं आई या आपको कोई मसला वगैरह उसमें लगा है तो आप रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है रजब अली के नाम से। तो ये देख सकते हैं, मैंने पहले भी एंड वगैरह की इन्होंने डिटेल मैंने दी हुई थी और ये शेयर किए। अब मैं वो जो पिक्चर्स मेरी हैं वो मैं इधर से लेता हूँ गैलरीज से। तो 1 2 और 3 पिक्चर्स थी, तो ये मैंने सेंड कर दी। नीचे कैप्शन में मैं वो कॉपी किया हुआ डिटेल जो है वो डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ये आपको यहाँ पे कीमत जो है वो नहीं देगा। तो आप अपना रेट लगाने के लिए आप यहाँ पे क्लिप पे जाएं, पहले इसे शेयर कर दें। तो जैसे ही आप शेयर करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो ऊपर पहुँच चुकी है। तो ये देखिए, ये मेरे ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इधर आ चुका है। तो यहाँ पे आपने अब इसकी प्राइस लगानी है। तो प्राइस आपने यूँ लगा लें, प्राइस लगा दें 1125 रुपये। जी हाँ, ये लगे 1125 रुपये प्राइस। तो ये मैंने शेयर कर दी। अब ये ग्रुप में पहुंच चुकी है और जिन्होंने भी ये इस घड़ी को मंगवाना है वो यहाँ पे हमें बैक मैसेज करेंगे। उनका जो ऑर्डर है वो हम लेके यहाँ पे हम अपने मरकज़ ऐप में जाकर इधर से हम जो है कैटेगरी में जाकर, और ये मज़े की बात आपको बताऊं कि ये इधर लिखा है अभी 100 रुपये बोनस हासिल करें। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी डिटेल वगैरह आप इधर किसी को ऑर्डर देते हैं तो ये आ जाता है। तो मैं आपको बताने वाला था वो आज का। तो यहाँ पे हम जो ऑर्डर हमने दिया था, ऑर्डर्स पे जाते हैं, यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी दे चुके हैं। तो ये हमारा पहले ही हो चुका था क्योंकि मेरे पास मुकम्मल डिटेल थी, तो आपको दिखाने के लिए ये सब किया है। तो इसी तरह आप भी ऑर्डर करके हज़ारों कमा सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो को अब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ख़ास तौर पर अच्छा व्लॉग भी लाऊंगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन भी लाऊंगा जिससे आप घर बैठे इजी में कुछ कमा सकते हो। यार वेले रहना लो यही चंगा ये, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजब अली और आप देख रहे हैं इस वक्त रजब यूट्यूब चैनल BBC कॉपी। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब क्या है, और ये पैसे कमाने का ही ज़रिया है या कुछ और से मुराद ये हो सकता है कि आप इस पर कोई चीज़ हमेशा के लिए सेव भी कर सकते हैं, ये मतलब भी हो सकता है। तो जी हाँ, आप अपने वीडियोस को, अपने फ़ोटोज़ को, अपने व्लॉग्स को इस पर सेव भी कर सकते हैं हमेशा के लिए। और ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। तो आपने ये जो यूट्यूब है ना, ये दरअसल 2005 में लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो आजकल तो हर मुकाम में ये यूट्यूब मौजूद है और ये अर्निंग करने का भी आसान तरीका है। इस पर अर्निंग जो आपने करनी है वो आपको रियल कॉन्टेंट बनाने में और रियल चीज़ जो है जो आप अपनी तरफ से आप खुद बनाएंगे उससे आपको अर्निंग होगी, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। किसी की कोई वीडियोस को चोरी करना या कॉपी करके या उसको एडिटिंग करके अपलोड कर तो सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉपीराइट क्लेम कर देगा जिससे आपके चैनल पर सब्सक्राइब आएंगे, व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। और मज़ीद ये है कि ये तो यूँ ही ये जो चीज़ है ये तो यार सब चोरी है, ठीक है ना। चोरी से थोड़ा परहेज करें, किसी की कोई कॉपी ज़्यादा ना करें। हाँ, अगर कॉपी करनी है तो उसकी प्रकार की कॉपी करें, उस जैसा बनने की कॉपी करें। हाँ, अच्छे और बुरे में ये फ़र्क
काट कर अच्छा बनने की कोशिश करें। मेरी इस वीडियो से मुराद अच्छा बनने की कोशिश करना है, और इससे ये मुराद नहीं कि आप कोई बुरी चीज़ देखें और जैसे अपलोड करना शुरू करें। तो यूट्यूब पर आप बेहूदा चीज़ें जो है ना वो बेहूदा वीडियोस भी नहीं अपलोड कर सकते। इससे भी आपके चैनल पर सब्सक्राइब आएंगे और अर्निंग निकलेगी। कि अगर आपने अर्निंग करनी है तो आपने रियल कंटेंट बनाना है, और उस रियल कंटेंट को ग्रो भी करना है, और ग्रो आप वो शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और इससे बड़ी जो चीज़ है वो है आपके सब्सक्राइबर, वो भी आपको रियल में होने चाहिए। खरीदे हुए सब्सक्राइबर तो आपके किसी काम के नहीं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजब अली और आप देख रहे हैं इस वक्त BBC कॉपी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हम किसी की वीडियो को उठाकर अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं और हमारे चैनल पे कोई स्ट्राइक आ जाता है, जैसे कोई कॉपीराइट। तो बेस्ट जो काम है ये आप ना करें, ये सबके लिए बेस्ट काम है। आप ना करें ये काम, और इसको आप अपने जहन से ही निकाल दें ताकि जो है ना वो आपके चैनल पर सब्सक्राइब ना बने। इससे आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, आपका चैनल डेड पे चला जाएगा, आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो आपने करना क्या है कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है और इस कॉपीराइट क्लेम से बचना है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
आज अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में ये बादल हमारे गांव में ख़ास तौर पर ये बने, तो बारिश का मौसम बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा दिलकश माहौल है, नज़ारा